শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हम लोग कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत श्री चैतन्य चरितामृत दादी लीलाয় আছি। पंचम एकादश परिच्छेद চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 9 থেকে আরম্ভ করব। চৈতন্য চরিতামৃত মাধবী 11.9 onwards 9 নম্বর শ্লোক। ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত, ईश्वर হইয়া कहा महाभागवत, वेद धर्मातीत হইয়া वेद धर्मेर रत, वेद धर्मातीत হইয়া वेद धर्मरत। तो ये किनका अवतार थे? वीरभद्र गोसाई महामंत्री माता जी ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুদেব। ঠিক আছে, যদিও বীরভদ্র গোসাই ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তিনি একজন মহান ভক্ত রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। পরমেশ্বর ভগবান যদিও সমস্ত বেদ ধর্মের অতীত, তবুও তিনি গভীর নিষ্ঠা সহকারে বৈদিক ধর্ম অনুশীলন করেছিলেন। অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ, অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা, বাহিরে নির্দম্ভ, চৈতন্য ভক্তি মণ্ডপে দেহ মূল স্তম্ভ, चैतन्य भक्ति मंडपे तेहि मूल स्तंभ। অদ্যাপি যাহার কৃপা মহিমা হইতে, अद्यापि যাহার কৃপা মহিমা হইতে, চৈতন্য নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। সেই বীরভদ্র গোসাইয়ের লইনু শরণ, সেই বীরভদ্র গোসাই লইল শরণ, যার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ, যাহার প্রসাদে অভীষ্ট পূরণ। শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস, শ্রীরামদাস যার গদাধর দাস, চৈতন্য গোসাইয়ের ভক্ত রহে তার পাশ, চৈতন্য গোসাইয়ের ভক্ত রহে তার পাশ। অন্তরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি মণ্ডপে তিনি হচ্ছেন মূল স্তম্ভ স্বরূপ। अभी साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही तो है। कल आए थे, ये बात याद है? वीरभद्र गोसाई महाप्रभु का ही अवतार है। অন্তরে তিনি জানতেন যে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু, কিন্তু বাহিরে তিনি কোনো প্রকার দম্ভ প্রকাশ করতেন না। दम्भ माने मैं भगवान हूँ, हरि बोल, ऐसे करके कोई दम्भ प्राउड नहीं होते थे। श्री वीरभद्र गोसाई कृपा महिमा प्रभावे आज सारा जगते মানুষ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু नित्यानंद प्रभु श्री नित्यानंद प्रभु नाम कीर्तन করার সুযোগ পাচ্ছে, बहुत प्रचार किया। समझिए यार, नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार किया और नित्यानंद प्रभु का सबसे बड़ा ब्रांच स्तंभो कौन था? उनका पुत्र वीरभद्र गोसाई। तो उन्हीं की कृपा से इतना सब कुछ प्रचार हुआ है। তাই আমি শ্রী বীরভদ্র গোসাই শ্রী পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি, কবিরাজ গোস্বামী বললেন, যাতে তার কৃপার প্রভাবে আমার শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করার বাসনা পূর্ণ হয়। श्री रामदास, रामदास सुनने किसी को किसका नाम याद आना चाहिए? अभिराम ठाकुर। और गदाधर दास, ये गदाधर दास गदाधर, हाँ वही, क्या याद आना चाहिए? एरिया दो याद। श्री रामदास और गदाधर दास नामक श्री चैतन्य महाप्रभु दुजन भक्त सर्वदा श्री वीरभद्र गोसाई संगे थकते। अभी ये कुछ ये दोनों का पार्षद है ना, जैसे महाप्रभु का पार्षद है, नित्यानंद प्रभु का भी द्वादश गोपाल है, लेकिन कुछ भक्त हैं जो कॉमन है, दोनों में है। उनमें से एक है गदाधर दास, दूसरा है अभिराम ठाकुर। ये दोनों का ही भक्त है। समझ में आया मैं क्या बोला? दोनों का ही पार्षद है, कॉमन, नित्यानंद प्रभु का भी, महाप्रभु का। यहाँ से आवाज आ रहा है, चूचू म्यूट करिए, म्यूट करो। श्रीवास प्रभु श्री रामदास পরবর্তীকালে যিনি অভিরাম ঠাকুরের নামে পরিচিত হন, তিনি ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর গোপ সখা দ্বাদশ গোপালের অন্যতম, শায়দ শ্রীদাম সখাতে। গৌরগঞ্জের দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে রামদাস ছিলেন ব্রজের শ্রীদাম সখা।
ভক্তি রত্নাকরে চতুর্দশ তরঙ্গে শ্রী অভিরাম ঠাকুরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে অভিরাম ঠাকুর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তি ধর্মের প্রচারক ও আচার্য ছিলেন। भारती माता जी हैं, তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী পুরুষ ছিলেন এবং অভক্তেরা তাকে ভীষণ ভয় পেত। क्यों मालूम है ना सबको? ड्रामा देखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। तो स्क्रीन शेयर करिए ना ड्रामा। শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে তিনি নিরন্তর প্রেমমত্ত থাকতেন এবং তিনি অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাময় ছিলেন। কথিত আছে যে শালগ্রাম শিলা বা বিষ্ণুর অর্চমূর্তি ব্যতীত অন্য শিলা বা মূর্তিকে তিনি প্রণাম করলে তা তৎক্ষণাৎ চূর্ণ বিচ্ছুন্ন হয়ে যেত। बहुत लोग ऑल्टर में बोलता है ये शालिग्राम शिला है, ये है, वो है, वो है। तो जाके डायरेक्ट अभिराम ठाकुर दंडवत करेंगे, ओरिजिनल है तो रह जाएगा, नहीं तो हरे कृष्ण। चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तार अनुभाषे उल्लेख करेছেন হাওড়া আমতা লাইনে চাপাডাঙ্গা স্টেশন থেকে প্রায় 10 মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে হুগলি জেলার একটি ছোট শহর খানাকুল কৃষ্ণনগরে অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত মন্দির রয়েছে। हम लोग गए थे ना कुछ दिन आगे, याद है ना? अभिराम ठाकुर के पास खानाकुल कृष्णनगर, সেখান থেকে 7.5 মাইল उत्तरे खानाकुल। ये खानाकुल कृष्णनगर नहीं है, दूसरा है, ठीक है? मिक्स मत करिएगा, मायापुर वाला कृष्णनगर नहीं है, ये तारकेश्वर लाइन में। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাদ যে কৃষ্ণনগরে অবস্থিত তা খানা বা দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে অবস্থিত বলেই খানাকুল কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত। चापाडांगा लिखा है प्रभु। तो वो स्टेशन वही है क्या? कहाँ उतरे थे हम लोग? किसी को याद है कौन सा स्टेशन में उतरे थे? याद नहीं। আমরা তো তারকেশ্বর হয়ে তারপরে ওখানে গাড়ি করে গেলাম। তারকেশ্বর নেমে গাড়ি করে গেছিলাম না? আচ্ছা, হ্যাঁ তারকেশ্বর নেমে আর ওখান থেকে গাড়ি ধরে গেলাম। কথিত আছে যে অভিরাম ঠাকুর যখন এই স্থানটি সিদ্ধ বকুল কুঞ্জ নামে অভিহিত। কথিত আছে যে অভিরাম ঠাকুর যখন সেখানে প্রথম আসেন তখন তিনি এই বৃক্ষটি নিচে বসেন। চৈত্র মাসের কৃষ্ণ সপ্তমীর দিন খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রতি বছর এক বিরাট মেলা বসে। चैत्र मासेर कृष्ण सप्तमी दिन, अभी चैत्र मास चल रहा है ना? वो 8 दिन पहले हो गया, आज तो पूर्णिमा हो गई। कृष्ण सप्तमी, हाँ 4-5 दिन आगे हो गया, नहीं 8 दिन पहले हो गया। आज तो हनुमान जयंती पूर्णिमा है, ठीक है। मेला बसे, लक्ष लक्ष लोक সেই মেলায় সমাবেত হন। অভিরাম ঠাকুরের মন্দিরে এক অতি প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। সেই মন্দিরে শ্রী গোপীনাথজির বিগ্রহ রয়েছে। মন্দিরের সন্নিকটে বহু সেবায়িত পরিবার বাস করেন। কথিত আছে যে অভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গল নামক এক চাবুক ছিল এবং যাকে তিনি সেই চাবুক দিয়ে স্পর্শ করতেন তৎক্ষণাৎ তারই কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হতো। মানে ইমিডিয়েটলি স্পট কৃষ্ণ প্রেম চাইয়ে তো চাবুক সে খাইয়ে। হরে কৃষ্ণ। শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু যখন অভিরাম ঠাকুরের অতি উল্লেখযোগ্য প্রিয় পাত্র ছিলেন, তবে তিনি তার দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। না, শ্রীনিবাস আচার্য তো দীক্ষা হয় কার থেকে? শ্রীনিবাস আচার্য গুরু কে ছিলেন? গোপাল ভট্ট না? গোপাল ভট্ট গোস্বামী, ঠিক মনে করছে না, আবার ভক্তি রত্নাকর করতে হবে, सब भूले जाओ। एनीवेज, श्रीनिवास आचार्य तो खुद भी महाप्रभु का अवतार थे और वीरभद्र गोसाई भी महाप्रभु का रूप लेकर आए, मैं रूप बने अवतार थे। अगला श्लोक 14-15। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक अभिराम ठाकुर के बारे में? अभी इनका बहुत लीला आता है ठाकुर का। ऑल्सो नोन बाय द नेम रामदास was one of the brothers Gopal and Cowherd and Baja, the eternal लीला in Shridham, की मतलब श्री कृष्ण बलराम। अच्छा, कुछ लीला में आपको आगे से बता दे रहा हूँ कि अभिराम ठाकुर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक तो है कि जिनको भी दंडवत करना प्रणाम करते थे, अगर वो व्यक्ति
भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं, वो मर जाएगा। तो इन्होंने हम लोग देखा उस लीला में किस तरह ये नित्यानंद प्रभु के एक बाद एक पुत्र को दंडवत किया, सब मर गया। तो लास्ट में गंगा माता जन्म लिया और वीरभद्र गोसाई जन्म लिया। ये तो हम लोग ने देखा, सबको मालूम। इसके अलावा बहुत प्रसिद्ध लीला आता है अभिराम ठाकुर का कि वो द्वापर युग में जब सब बच्चे लोग खेल रहा था कृष्ण के साथ, तो ये सुबल सखा भी खेल रहा था, चोर छुपी लुका छुपी खेल रहा था। न कोई बालक छुप जाएगा, बाकी लोग ढूंढेंगे। ये कभी खेला आपने करुणा राधे माता जी? हाँ, खेला है बचपन में। तो हम लोग भी खेल सकते थे भाई, हम लोग जब कन्हैयाशाला में कर सकते ऐसे। तो ये फिर क्या हुआ, ये श्रीराम सखा ने एक गोवर्धन पर्वत के गुफा में जाकर छुप गया था। और फिर उस समय क्या किया, भगवान श्री कृष्ण अपने सब बालकों के साथ, युग परिवर्तन हो गया था उस समय, कलयुग में प्रवेश कर लिया। और कलयुग में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु और सब सखा रूप में प्रवेश किया और खेलने लगा या विहार करने लगा। अचानक महाप्रभु को याद आया, कहाँ है मेरा रामाई रामाई, राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम माने श्रीराम कहाँ है, श्रीराम कहाँ है, श्रीराम श्रीराम, नित्यानंद प्रभु कहाँ है श्रीराम। तो नित्यानंद प्रभु बोला, लग रहा है वो वहीं रह गया द्वापर युग में, हम लोग जब खेल रहे थे गोवर्धन में छुपा छुपी, जाओ जाकर ले आओ। तो नित्यानंद प्रभु गोवर्धन आते हैं, गोवर्धन में देखते गुफा के अंदर में श्रीराम चुपचाप बैठा हुआ है, छुपा हुआ है। तो अरे श्रीराम तुम यहाँ हो, हम लोग तो उधर खेल रहे हैं, अभी युग परिवर्तन हो गया, हम लोग उधर चले गए। हम नित्यानंद प्रभु रूप में बोले, तुम कौन हो? बोले, अरे मैं बलराम जी हूँ। बोले, नहीं नहीं नहीं, तुम तो दूसरा कुछ लग रहे हो। अभी नित्यानंद प्रभु का चेहरा अलग है ना बलराम जी से। हाँ, बोले नहीं नहीं तुम दूसरा। बोले, अगर तुम बलराम जी हो तो मेरे साथ रेस लगाओ, क्योंकि ये गोवर्धन में रेस लगाओ और एकमात्र बलराम जी मेरे को हरा सकता है। तो फिर दोनों में रेस लगाया, दोनों ने गोवर्धन पर्वत का सर्कमएम्बुलेशन माने परिक्रमा किया, परिक्रमा माने रेस करते करते, और बलराम जी जीत गया, मैंने नित्यानंद प्रभु जीत गया। तो अभिराम ठाकुर ने बोला, हाँ ठीक है, तुम फिर 100% बलराम जी हो, ठीक है, बोलो क्या है। अरे तुमको महाप्रभु मिस कर रहे हैं, उन लोग तो सब नदिया में चले गए, हम लोग सब नदिया में चले गए, तुम यही गोवर्धन में छुपा हुआ हो, चलो मेरे साथ। बहुत सुंदर लीला है। तो फिर सब उनको लेकर गया, नित्यानंद प्रभु उनको लेकर के, तो बहुत महाप्रभु आलिंगन, महाप्रभु रो रहा था उनके विरह में, बहुत खुश हो गया उनका आलिंगन के गौरंग महाप्रभु। तो ये लीला आता है अभिराम ठाकुर का। और भी कुछ एक लीला था अभिराम ठाकुर का, और कुछ लीला आता है हिरण्मय गौरांग प्रभु अभिराम ठाकुर का। और एक आता है जय मंगल बोल दिया, तो याद नहीं आ रहा, और कुछ था। अगला श्लोक 14-15। नित्यानंद आज्ञा दिलो जबे गौर जाइते, नित्यानंद आज्ञा दिलो जाइते, महाप्रभु এই দুই দিলা তার সাথে, महाप्रभु এই দুই দিল তার সাথে, অতএব দুই গণে দুহার গণন, এত দুই গণে দোহার গণন, মাধব বাসুদেব ঘোষেরও এই বিবরণ, माधव वासुदेव घोषেরও এই বিবরণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রচার করার জন্য গৌরব অঙ্গে যেতে আদেশ দেন, তখন এই দুইজন ভক্তকেও শ্রী রামদাস और श्री गदाधर दास, ये गदाधर दास गलती मत करिएगा, ये गदाधर पंडित नहीं है, टोटा गोपीनाथ वाले नहीं है, ये दास गदाधर है, राधा रानी का अंग कांति का अवतार, याद है? वेरी गुड। তিনি তার সঙ্গে যেতে আদেশ দেন। তাই কখনো কখনো তাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গণ, আবার কখনো কখনো নিত্যানন্দ প্রভুর गण बोले गणना करा है। मीन्स कभी कभी लग सकता है कि इन लोग महाप्रभु का लोग है, और कभी कभी, उसीलिए बोला ना मैंने कि कुछ कुछ लोग है जो दोनों टीम में ही था, दोनों का ही पार्षद है। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो छड़ी का नाम क्या बताए? जय मंगल। यस, केशव जगत माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, ये गदाधर दास वही है ना जो महाप्रकाश लीला में महाप्रभु नावी बनकर पार कराए थे? नहीं नहीं नहीं, महाप्रभु क्या? जो नावी बनकर पार नहीं कराए नहीं थे। नहीं, वो गंगादास पंडित, अच्छा। वो महाप्रभु का टीचर था गंगादास। ये सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी, वो जिनके लिए महाप्रभु ने 2 रूप में अवतार लिया था ना, वहां पे अंबिका कालना जो था, नहीं, वो तो गौरीदास पंडित। वो गौरीदास, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम लोग? ओके, तो ये 2 जन जो है, इन लोग दोनों का ही फ्रेंड पार्षद है, ठीक है। मान द्वादश गोपाल में भी आपको दोनों का नाम मिलेगा, दास गदाधर और अभिराम ठाकुर, और इन दोनों महाप्रभु का भी पार्षद है। दोनों का कॉमन फ्रेंड्स होता है ना, 2 भाई है, हम ये देखा है, 2 भाई है, दोनों का अलग अलग फ्रेंड्स रहता है, लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ कॉमन फ्रेंड्स रहते हैं, दोनों भाई का ही फ्रेंड्स होता है ना ऐसे। तेमनी माधव घोष एवं वासुदेव घोष श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु उभयगण, ये 3 भाई था, गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष। गोविंद को महाप्रभु अपने पास रख लिया था, याद है, ये आया था 1 हफ्ता आगे, और 2 भाई को दे दिया, तुम चले जाओ नित्यानंद प्रभु के साथ, जाके बंगाल में उनको हेल्प करो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तार अनुभाष्ये उल्लेख करेছেন, বর্ধমান জেলার দাইহাট ও পাটুলির নিকট অগ্রদ্বীপ নামক স্থানে গোপীনাথজির বিগ্রহ বিরাজমান। এই বিগ্রহ গোবিন্দ ঘোষকে পিতা রূপে গ্রহণ করেছিলেন। হরি বল, वाह क्या लीला भगवान का। এই বিগ্রহ गोविंद घोष के पिता रूप में स्वीकार करेছিলেন, भगवान ने गोविंद घोष को पिता रूप में स्वीकार किया था विग्रह ने। कितना सुंदर लीला ना। आजও এই বিগ্রহ গোবিন্দ ঘোষের অপ্রকট দিবসে श्राद्ध अनुष्ठान करे। हरि बोल विग्रह श्राद्ध अनुष्ठान करता है, क्यों? क्योंकि गोविंद घोष को पिता रूप में स्वीकार किया था। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশধর কৃষ্ণনগরের রাজবংশে তত্ত্বাবধানে এই বিগ্রহের সেবা সম্পাদন হয়েছে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে 12 দোলের সময় গোপীনাথজির বিগ্রহ কৃষ্ণনগরে নিয়ে আসা হয়। অপর 11টি বিগ্রহ সহ এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় এবং গোপীনাথজি দোলের পর পুনরায় অগ্রদ্বীপে মন্দিরে नीत हन, माने वापस चले जाते थे। ठीक है, एकदम अलौकिक ना। इसीलिए महाप्रभु का लीला जो है वो आई मीन कंपेयर तो करना ना अपराध होगा, लेकिन फिर भी माने और दूसरा भगवान का जितना भी लीला है उससे सबसे ज्यादा अलौकिक और सबसे ज्यादा स्वीट मधुर लीला, गौरांगेरो मधुर लीला। तो विग्रह भक्त को पिता रूप में स्वीकार करता है और श्राद्ध अनुष्ठान भी करता है उनका मृत्यु वार्षिकी में। बोलুন না তাই রোজি এর একটা ঘটনা আছে না, গল্প আছে, কেন উনি শ্রাদ্ধ করেন? না আমি জানি না, কখনো শুনি না। ওনার মনে হয় ছেলে ছিল বা মারা গেছিল বা কেউ ছিল না, তখন কোনো শ্রাদ্ধ ভগবানের কাছে আমি মারা গেলে, মানে আমার মারা গেলে কে শ্রাদ্ধ করবে, তখন গোপীনাথজি এইটা করেন তখন থেকে। আপনি কোথা থেকে বলছেন? আমিও শুনেছি। আরে সেটা তো কার ব্যাপারে শুনেছেন? এর এই ঘটনাটাই শুনেছি আগে, এই ঘটনা। তাহলে এখানে উল্লেখ করতে প্রভুপাদ, ঠিক আছে, হতে পারে। ওকে, এটা তো অগ্রদ্বীপ। হ্যাঁ, এটা তো অগ্রদ্বীপই লেখা আছে প্রভু। এখানে লেখা আছে পাটুলির নিকটে অগ্রদ্বীপে নামক স্থানে গোপীনাথ। হ্যাঁ এইটাই। তাহলে ঠিকই বলছেন। তাহলে 16 নম্বর, রামদাস মুখ্য শাখা সখ্য প্রেম রাশি। रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम राशि। 16 সাঙ্গের কাষ্ঠ যেই তুলি কইল বাসি। 16 संगेर काष्ठ जय तुली कैले वासी बंसी। ये 1 सप्ताह आगे भी आया था कि ये अभिराम रामदास माने अभिराम ठाकुर, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या किया था रामदास? श्री चैतन्य महाप्रभु एक मुख्य शाखा रामदास सख्य प्रेमे पूर्ण ছিলেন। देखिए यहाँ लिखा है चैतन्य महाप्रभु मुख्य शाखा, अभी 2 श्लोक आगे लिखा था नित्यानंद प्रभु के शाखा, तो दोनों कॉमन है। ये তিনি 16টি গাঁটযুক্ত একটি বাঁশকে বাঁশিতে পরিণত করে
তা বাজিয়েছিলেন। इसीलिए हमको अभी याद आ रहा है ये अभिराम ठाकुर का विग्रह का जो बांसुरी है गोपीनाथ जी का, इतना मोटा, इतना बड़ा, क्यों समझ में आया? एक तो बांस लिया, बांस में जो 16 गांठ था कितना लंबा होगा सोचिए, उसको उन्होंने बांसुरी बजाया था। कौन? अभिराम ठाकुर। बोलिए बोलिए प्रभु। वही आए प्रभु जो इसका पहले भी ये बताया गया था। गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद, गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद, जार घरे दान केली कइल नित्यानंद, जार घरे दान केली कइल नित्यानंद। श्री गदाधर दास सर्वदा गोपी भावे पूर्ण आनंदे मग्न থাকেন। याद है वो गदाधर दास माने राधा रानी, श्रीमती राधा रानी का अंग कांतिका होता है। तार घरे नित्यानंद प्रभु दान के लिए नाटक अभिनय करते हैं। दान के लिए अभी आगे ऐसे भी आता है कि अगले दिन जब कर लेने आए थे, उस दिन सब गोपी लोग उनको पकड़ लिया और पकड़ के बांध दिया, हाथ पैर बांध दिया, और बांध करके बाद में गोपी ड्रेस पहनाया। गोपी ड्रेस पहना के बोले डांस करो, तब छोड़ेंगे। ये सब बहुत सुंदर लीला है। इसके ऊपर एक बुक भी है, शायद श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है नाटक के फॉर्म में, दान के लिए कौमुदी। सुना होगा आप लोग ने नाम, बहुत बार प्रभुपाद मेंशन करते हैं इस बुक के बारे में। तो यहाँ किस प्रसंग में आया? यहाँ लिखा है कि नित्यानंद प्रभु इनके घर पे, गदाधर दास के घर पे ये दान के लिए नाटक अभिनय করেছিলেন। ओके, नित्यानंद प्रभु हम लोग देखते हैं बचपन में भी, बचपन में अपने मित्रों के साथ एक चक्रधाम में नाटक, भगवान रामचंद्र जी का नाटक अभिनय करता था। याद है कि आया था? और इसी समय एक बार ऐसा हुआ कि नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण जी का रोल निभाया था और उनको इंद्रजीत ने नागपाश बाण मारा था शायद, और उनका किया था, एकदम मूर्छित हो गया था। सचमुच तो सब भक्त लोग सोच रहा था, वो सखा लोग सोच रहा था कि सचमुच क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या, बहुत रोने लग गया था। इस तरह से हम लोग देखते कि भगवान बचपन में सब ऐसे दूसरे अवतारों का लीला कर रहे हैं। वैसे ही कृष्णचंद्र भगवान भी राम जी का लीला किया था बचपन में नाटक मित्रों के साथ। उन्होंने भी पुल बनाया था, मालूम है ना? ये सब यमुना में पुल बनाया था भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो ड्रामा जो है ये बहुत आगे से ही चला आ रहा है। भगवान भी अपने बचपन में लीला में ऐसे करते थे। प्रभु ये लास्ट में किससे डर गए थे दोनों? कृष्ण ये जो बने हुए थे दान केली में, लास्ट में किससे डर गए थे? ये गोपियों से, उन लोग का माँ से, उन लोग का माँ आएगा बड़ा वाला गोपी। ये अभी बच्चे लोग थे, इन लोग का मम्मी भी आएगा तो पकड़ के हाथ पैर बांध के एकदम बोलेगा गोपी ड्रेस पहनाओ, अभी डांस करो। वो भी लीला आता है। 17 नंबर तक के नित्यानंद प्रभु ने ये सब नाटक, ये ड्रामा किया था, दान के लिए नाटक। ठीक, এখানে রচিত গ্রন্থ অমৃতলা হরি হরিয়া সবে বলো হরি হরি। गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।